Assalamu alaikum, welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. In this video, I am going to share NTS National Testing Services Junior Clerk paper that was conducted on 23rd November 2025. This paper was conducted for the post of Junior Clerk BPS 11 8 District and Sessions Judge Hyderabad. So this paper will be also helpful for all the posts announced by National Testing Services for preparation. So here we go. Complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given lettered choices A to D below each. So question number 1. There is dash in the room. A. Anybody. B. Nobody. C. Anyone. D. Any person. And the correct answer is there is nobody. B option is the correct here. Question number 2. We dash a lot of work yesterday. Yesterday represents past. So in this blank there will be past verb form. That is C. Did. We did a lot of work yesterday. Question number 3. Where dash you born? This is also a past. So where were. C option is correct here because with you we use were. Where were you born? Question number 4. These medicines are dash for curing cold. A. Proper. B. Real. C. Effective. D. Capable. And the correct option is D. C. Effective. These medicines are effective for curing cold. Effective word is used for medicines. Question number 5. Her eyes are filled dash tears by, with, C, on, D, in. And the correct option is B, with. Her eyes were filled with tears. Question number 6. My aunt will dash my home. A. Visited. B. Visits. C. Visit. D. Visiting. So the correct option will be my aunt will visit. C. My aunt will visit my home. This is a sentence from future simple or future indefinite tense where we use first verb of the form. Question number 7. There is no harm dash him. A. To meet. B. To meeting. C. Meet. D. In meeting. And the correct option is D. There is no harm in meeting him. Question number 8. We believe dash one God. A. On one God. B. At one God. C. By one God. D. In one God. And the correct option is we believe in in one God. D option is the correct here. Now comes questions from choose the lettered word or phrase that is most nearly similar in meaning to the word in capital letters. So word and synonyms questions. So the synonym for the word daily. A. Often. B. Never. C. Every day. D. Seldom. And the correct option is C. Every day. Daily means every day. Question number 10. Synonym for the word appear. A. Disappear. This would be the opposite. B. Vanish. C. Seem. D. Unseen. And the correct answer is C. Seem. Appear. Synonym for the word appear is seem. Similar meaning word. Question number 11. Synonym for the word slowly. A. Quickly. It would be the opposite verb. Antonyms. B. Swiftly. C. Loudly. D. Gradually. And the correct option is D. Synonym for the word slowly is gradually. Subscribe to Rati Educational Academy YouTube channel. Question number 12. Synonym for the word huge. A. Senior. B. Junior. C. Big. D. Small. And the correct answer is C. Big. Question number 13. Synonym for the word dislike. A. Like. B. Hate. C. Garnish. D. Praise. And the correct answer is dislike, hate. B option is correct here. Question number 14. Synonym for the word scatter. A. Retain. B. Disperse. C. Hold. D. Gather. Scatter means alag alag hona. So
B, disperse is the correct synonym. Synonym for the word scatter is disperse, B. Now comes questions from antonyms, word opposites. Choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in the meaning to the word in capital letters. Question number 15, pollute. Antonym for the word pollute: A, infect, B, soil, C, clean, D, pretty. And the antonym for the word pollute is C, clean. Question number 16, antonym for the word barren: A, dry, B, fruitful, C, distant, D, infertile. And the correct answer is B, fruitful. Antonym for the word barren is fruitful. Question number 17, antonym for the word just: A, fair, B, unjust, C, outflow, D, soothe. And the correct answer is B, unjust. Antonym for the word just is unjust. Subscribe to Rati Educational Academy YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok and WhatsApp. Antonym for the word freedom: A, ownership, B, power, C, slavery, D, independence. And the correct option is C, slavery. Antonym for the word freedom is slavery. Question number 19, antonym for the word start: A, begin, this is the synonym, B, end, C, go on, D, maintain. And the correct option is B, end. Start, end. Question number 20, antonym for the word safe: A, healthy, B, useful, C, dangerous, D, shocked. And the correct option is C, dangerous. Question number 21, antonym for the word punish: A, fine, B, hide, C, sympathy, D, reward. And the correct answer is D, reward. Antonym for the word punish is reward. Question number 22, antonym for the word push: A, cover, B, throw, C, pass, D, pull. And the correct option is D, pull. Antonym for the word push is pull. Subscribe to Rati Educational Academy YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok and WhatsApp. Now comes questions from reading comprehension, reading passage. So question number 23 to 26 questions will be based on this reading passage. The reading passage: the Chitral Valley is located high in the Hindu Kush mountains. Being the last valley of our country, it touches Afghanistan border from southern, northern and western side. It is separated from Uzbekistan by a narrow strip of Wakhan and from China by the Hanza area. The weather is pleasant in summer and extremely cold in winter. Spring weather is uncertain due to frequent rain and snowfall. रीडिंग पैसेज का जो हल करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें, फिर उसके आंसर सर्च करें. तो चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग इज द लास्ट वैली ऑफ पाकिस्तान? चित्राल, गिलगित, एबटाबाद, कागान. अब तीन जो BCD, गिलगित, एबटाबाद, कागान, इन तीनों का जिक्र किया ही नहीं गया, चित्राल वैली का जिक्र किया गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है. क्वेश्चन नंबर 24, चित्राल वैली टचेस अफगानिस्तान बॉर्डर फ्राम A, 1 side, B, 2 sides, C, 3 sides, D, 4 sides. ये सेकेंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, मतलब कि आफ्टर फुल स्टॉप सेकेंड लाइन: बीइंग द लास्ट वैली ऑफ आवर कंट्री, इट टचेस अफगानिस्तान बॉर्डर फ्राम साउदर्न 1, नॉर्दर्न 2 एंड वेस्टर्न 3. सो 3 साइड्स. सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है. क्वेश्चन नंबर 25, चित्राल वैली इज सेपरेटेड फ्राम चाइना बाय Wakhan, B, Hanza area, C, Afghanistan border. A, both A and B. So China, फ्राम चाइना, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्राम चाइना बाय द हंजा एरिया. सो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बी, 25. बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है. चित्राल वैली इज सेपरेटेड फ्राम चाइना बाय हंजा एरिया. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26, द वेदर ऑफ चित्राल वैली इज इन विंटर इज: A, pleasant, B, extremely hot, C, extremely cold, D, uncertain. So the weather is pleasant in summer and extremely cold in winter. सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है extremely cold. So C ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है. ये था पहला रीडिंग का पैसेज जूनियर क्लर्क के टेस्ट में जो कि NTS ने लिया था.
तो इस तरह से रीडिंग पैसेज NTS के पेपर्स में आते हैं, चाहे वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट हो, या फिर जो भी टेस्ट है इसकी जो जहाँ पर इंग्लिश रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर इस तरह का पैसेज ज़रूर होगा। थोड़ा इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है तो वो एज पर द पोस्ट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जैसे कि अभी ये BPSC 11 है तो ये बिल्कुल ही आप कहें कि ईजी है। सो अभी क्वेश्चन सेकंड पैसेज फॉर द NTS पेपर that was conducted for the post junior clerk in session court. Question number paragraph is science affects the average man and woman in two ways. He or she benefits by its application, driving in a motor car or omnibus instead of a horse-drawn vehicle, being treated for disease by a doctor or surgeon rather than a witch, and being killed with an automatic pistol or a shell in place of a dagger or battle axe. It also affects his or her opinions. Almost everyone believes that the earth is round and the heavens nearly empty instead of being solid, and we are beginning to believe in our animal ancestry and the possibility of vast improvements in the human nature by biological methods. So, question number 27, a suitable title for the passage would be, तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए? इम्पैक्ट ऑफ साइंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, साइंस एंड मैन, एडवांटेजेस ऑफ साइंस। सो ए ऑप्शन वुड बी द बेस्ट सुइटेबल, इम्पैक्ट ऑफ साइंस, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेजेस भी कहा है, साइंस एंड मैन नहीं हो सकता क्योंकि वुमेन के बारे में भी बताया है, एडवांटेजेस ऑफ साइंस भी नहीं हो सकता क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, साइंस हैज़ मेड मैन अवेयर ऑफ हिज एनिमल इंस्टिक्ट्स, driving a motor car, his ancestry, disadvantages of a dagger, and the correct option is, and we are beginning to believe in our animal ancestry. So साइंस ने ये करके दिखाया है। 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा साइंस हैज मेड एंड मैन अवेयर ऑफ हिज एंसेस्ट्री। Question number 29, which of the following statements is incorrect in the context of passage? Man has benefits from science, disease have been reduced by science, man now uses guns to kill, science has changed man's life. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डिजीज हैव बीन रिड्यूस्ड बाय साइंस, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट आ गया है। तो इस तरह से इम्पैक्ट ऑफ साइंस हैज मेड अस बेटर किलर्स, मेड अस हेल्दियर, मेड अस skeptical, made us look afresh at ourselves, एंड तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये थे 30 सवाल वर्बल के। अभी हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क BPSC 11 कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज NTS। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्स की जो जूनियर क्लर्क का या स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर्स होते हैं या ऑपरेटर्स के होते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, या NTS की कोई भी पोस्ट आ रही है तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नफिल इज़ एन डैश प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप। नफिल जो हम पढ़ते हैं वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी है, ओब्लिगेटरी है, इलेक्टिव है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नफिल जो है वो ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिलीजियस बुक ऑफ मुस्लिम्स? द तौरात, द इंजील, द ज़बूर, द कुरान। मुस्लिम्स की जो इस्लामिक बुक है वो है द कुरान। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन परवेज़ मुशर्रफ रिजाइन्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जुलाई 14, 2007, अगस्त 18, 2008, अक्टूबर 7, 2009, सितंबर 12, 2010, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अगस्त 18, 2008। क्वेश्चन नंबर 34, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड ऑन 12th September, 13th September, 11th September, 10th September। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, 11th September 1948 को कायद-ए-आज़म की डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय फजलुल हक, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली। मोर देन 90% ऑफ जो क्वेश्चन हैं हमने जो पहले वीडियोज़ अपलोड की हुई है उनमें आ चुके हैं। सो अगर आप हमारे रेगुलर क्या कहते हैं व्यूअर्स हैं तो आपको फ़ायदा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मिंटू पार्क लेटर ऑन केम टू बी नोन एज लारानस पार्क, जिन्ना पार्क, लियाकत पार्क, इकबाल पार्क।
ये लाहौर में है मिंटू पार्क, जो कि 1930 में इलाहाबाद एड्रेस हुआ था। लाहौर रेजोल्यूशन जब पेश किया गया था 1939 में, तो तब उसके बाद ये इकबाल पार्क के नाम से मशहूर हुआ। अभी भी इकबाल पार्क है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, इन पाकिस्तान फ्रॉम वेयर गैस वाज डिस्कवर्ड एट फर्स्ट? ए सुई, बी पीरको, सी जोया मीर, डी पिट। ये 1952 में सुई से गैस डिस्कवर किया गया, जहाँ से मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुई कैंट। तो सुई में से ये पहले बार गैस डिस्कवर हुआ, पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन सुई के बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक नहीं पहुँचा सकते, देते ही नहीं, ये एक अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज आर लोकेटेड? एट रावलपिंडी, बी लाहौर, सी कराची, डी इस्लामाबाद। और द करेक्ट आंसर इज ए रावलपिंडी। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का, जहां इंशाल्लाह अभी ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, विच टैंक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान? डी अल खालिद, इसका करेक्ट जवाब है। अल खालिद टैंक जो है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 40, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान इज? ए तमगा बसारत, सितारा इम्तियाज़, निशान हैदर, निशान जुर्रत। हाईएस्ट पाकिस्तान मिलिट्री अवार्ड जो है वो है निशान हैदर, जो अभी तक 11 शोधा को मिल चुका है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो है निशान पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 41, इन आवर सोलर सिस्टम द बिगेस्ट प्लानट इज? ए जुपिटर, बी मार्स, सी मरकरी, डी वीनस। सबसे बिगेस्ट जो है वो है जुपिटर, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? मैड्रिड, बर्लिन, पेरिस, रोम। सो जो फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, मैड्रिड नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? नाइल रिवर, अमेज़न रिवर, यंगजी रिवर, मिसिसिपी रिवर। नाइल रिवर है जो वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 44, विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? अर्थ। अर्थ जो है वो आपका ब्लू प्लैनेट होता है। ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर, वाटर सिर्फ एक प्लैनेट पर है, वो अर्थ पे है, जिसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? लिवर, ब्रेन, स्किन, हार्ट। हार्ट ब्रेन बहुत छोटे होते हैं, लिवर भी। और स्किन जो है आपकी कंप्लीट बॉडी में है, तो स्किन जो है आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। सो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है जहाँ सूरज पहले ग्लो होता है तो वो है राइज करता है, तो वो है जापान, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट फुजी, डी K2। सो माउंट एवरेस्ट जो है टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, सेकेंड टॉलेस्ट K2 है, कराकोरम 2। क्वेश्चन नंबर 48, विच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल? ए लाइन, बी टाइगर, सी लेपर्ड, डी एलिफेंट। लाइन को बादशाह कहा जाता है जंगल का। क्वेश्चन नंबर 49, विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। एंड जो करेक्ट आंसर है वो है सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? ए एलिफेंट, बी ब्लू व्हेल, सी जिराफ, डी हिप्पोपोटेमस। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्टिनेंट्स? ए 6, बी 7, सी 2, डी 9। अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं तो क्लास 6 में या क्लास 5 में आप पढ़ते हैं कि अर्थ जो डिवाइड हुए वो 7 कॉन्टिनेंट्स में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 52, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ बाय एरिया इज? फर्स्ट जो है वो है एशिया, एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी। सेकंड आपका जो एरिया के हिसाब से कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 53, यासिर अरफात फाउंडेड फॉर फलस्तीन काज? ए हमास, बी हिजबुल्ला, सी PLO, डी नेम। एंड द करेक्ट आंसर इज सी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब इमाराट्स इज? ए दुबई, बी अबू दुबई, सी रियाद, डी शारजा। रियाद सऊदी अरब का मुल्क सिटी है और कैपिटल है। अबू धाबी जो है वो है यूनाइटेड अरब इमारात का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 55, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द एयरपोर्ट ऑफ
पाकिस्तान की है, क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म थी। क्वेश्चन नंबर 56, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की भी। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज़ द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान? कावा, ग्रीन टी, लस्सी, शुगर कैन जूस, ऑरेंज जूस। शुगर कैन जूस जो है वो है पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक। पाकिस्तान की नेशनल थिंग्स जितनी भी हैं वो हमने पहले ही आज से 4 साल पहले जैसे ही चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें से अपलोड किया था एक वीडियो, तो उसमें काफ़ी नेशनल चीज़ें बताई थी जो तकरीबन हर एक टेस्ट में आती रहती हैं, वो आप ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 57, सियाचिन ग्लेशियर फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कराकोरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 58, पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1950? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 59, डैश वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? अब्दुल सलाम ने फिज़िक्स कैटेगरी में जीता था, बाकियों ने अभी तक नहीं जीता। और उसके बाद 2015 में मिला था आई थिंक मलाला यूसुफजई को पीस के लिए, शेयर्ड यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 60, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटैटोज प्रोड्यूसर इज़? पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, चाइना। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इन्हीं ममालिक में पैदा होती हैं, तो पोटैटोज़ का जो ज़्यादा प्रोड्यूसर है वो है चाइना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगले वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर सेक्शन क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंप्यूटर। सो अगर आपने हमारी 2 वीडियोस देखी होंगी कंप्यूटर के हवाले से, 2 लेक्चर्स मैंने काफ़ी पहले अपलोड किए थे STS की टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, उसमें से काफ़ी सवाल आते हैं। पहला शार्ट कीज़ है, शार्ट कीज़ का वीडियो है एक्सप्लेनेशन के साथ, और दूसरा वीडियो जो है वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ये जनरेशन्स वगैरह सारा उस पर है, तो उससे काफ़ी सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 61, इन MS वर्ड द मिसस्पेल्ड वर्ड आर ऑटोमेटिकली मार्क्ड विद डैश वेव्स लाइन? ए ग्रीन, बी येलो, सी ब्लू, डी रेड। MS वर्ड में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो ना तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाती है वेवी, मतलब कि, तो वो उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है रेड। क्वेश्चन नंबर 62, रिफर्स टू द सेट मार्जिन्स, पेपर साइज एंड लेआउट। पेज की जो साइज़ है पेपर की वो किस तरह से लेआउट, मार्जिन वगैरह हम सेट करते हैं, वो कहाँ सेट करते हैं? वो फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, टेक्स्ट सिक्योरिटी, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन डी में आप सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डैश आर पिक्चर्स आर इमेजेस दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू पब्लिकेशन? ए टेबल, बी क्लिप आर्ट, सी बॉर्डर, डी वर्ड आर्ट। टेबल आप कोई टेबल लगा सकते हैं, बॉर्डर आपका जो पेज का बॉर्डर होता है, वर्ड आर्ट जो आप वर्ड्स के मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं, वो क्लिप आर्ट में आप पिक्चर्स और इमेज कर सकते हैं इंसर्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 64, डैश इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं। स्प्रेडशीट जो होती हैं वो होती हैं शीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर स्लाइड्स की बात की जाए तो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 65, पार्ट्स ऑफ एक्सेल विंडो इंक्लूड टाइटल बार, रिस्टोर आइकन, स्क्रॉल बार। ये सारे अवेलेबल होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 66, टू एंटर डेटा इनटू अ वर्कशीट चूज? ए एक्टिव सेल, बी मैथमेटिकल साइन, सी नंबर्स, डी नन ऑफ द अबव। एक्टिव सेल अगर आप उसको चूज़ करेंगे तो आप उसमें लिखना शुरू कर देंगे, डेटा कोई भी इंटर करना शुरू कर देंगे, फिर चाहे मैथमेटिकल साइंस हो, नंबर्स हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर फार्मूला आप लगाना चाहते हैं तो फिर इक्वल साइन से शुरू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मास्टर्स व्यूज इन पावर पॉइंट? 3 टाइप्स ऑफ मास्टर व्यूज है। बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 68, द वर्ल्ड वाइड वेब इज कलेक्शन ऑफ डैश कनेक्टेड विथ हाइपरलिंक्स? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, मूवी क्लिप्स, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स। आपके जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो तीनों अबव चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ईमेल कैन बी चेक्ड थ्रू इनबॉक्स, चेक मेल, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। चेक मेल कहीं भी नहीं होता, तो आप जो ईमेल चेक करते हैं वो इनबॉक्स से करते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 70, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल पी इज यूज्ड फॉर ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स? जी हाँ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है।
प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, फिर आप उसमें पेज की सेटिंग करेंगे और प्रिंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम टू कॉपी समथिंग विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड। कंट्रोल सी आपको कॉपी करने में मदद करेगी, कंट्रोल वी आपको पेस्ट करने में, कंट्रोल एच इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल एक्स कट करने में, मूव करने में। 72, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल जेड इज़ यूज्ड फॉर अनडू के लिए यूज़ होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अनडू मतलब जो चीज़ आप डिलीट करते हैं कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट MS पावर पॉइंट, वी कैन नॉट एड वीडियोज़ इन स्लाइड। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें हम वीडियोज़ नहीं ऐड कर सकते। Question number 74, the information about how the document was created and modified, subject, time and date of creation exists through which are the following option? File, properties, info, prepare. B option आपका दुरुस्त है, properties में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। Question number 75, recent versions of MS Word check for spelling and grammar as your work. The blue way underlined text means grammatical problems. C option आपका बिल्कुल दुरुस्त है। स्पेलिंग के लिए क्या है कि आपको रेड लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, यू कैन सेट अ स्पेसिफिक स्टाइल और थीम एज अ डिफॉल्ट फॉर एवरी फ्रेश डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट इन MS वर्ड बाय यूजिंग विच टैब। एंड द करेक्ट आंसर है इसका वो है डिज़ाइन के साथ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 77, थिक डॉटेड लाइन्स सिंगल या डबल दैट अपीयर्स अराउंड वर्ड्स और पैराग्राफ इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स, बॉर्डर, ड्राइंग, फॉर्मेटिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा बॉर्डर। थिक डॉटेड लाइन्स सिंगल और डबल दैट अपीयर्स अराउंड वर्ड्स और पैराग्राफ, पैराग्राफ के अराउंड होता है तो वो होता है बॉर्डर होता है एक पूरे डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 78, एडिंग कलर पैटर्न्स लाइन्स टू पैराग्राफ टू एम्फेसाइज टेक्स्ट आर कॉल्ड बॉर्डर, हाईलाइटिंग, सेलेक्टिंग, शेडिंग। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो शेड आप करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 79, विच आर द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। लाइन स्पेस जब हम डॉक्यूमेंट में देते हैं ना, कहीं कहीं रिकॉर्ड होती है कि 1.5 दें, 1 दें या डबल दें, तो सिंगल आप दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं, मल्टीपल में आप 1.1 दे सकते हैं, 0.9 भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रिपल नहीं होती। सो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग रिमूव्स टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड प्लेसेस इन अ क्लिपबोर्ड। रिमूव टेक्स्ट करेगा मतलब कि आप मूव कर रहे हैं तो वो कट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 81, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लैंकिंग टेक्स्ट बैकग्राउंड आर नोन एज वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट्स। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, टेक्स्ट इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 82, अ कैरेक्टर और लेटर कैन बी इरेज्ड बाय प्रेसिंग बैक स्पेस की। जब अब ये देखें ब्रेक स्पेस ही के साथ हम बैक रिमूव कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर इरेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन वी आर अप्लाइंग मोशन इफेक्ट्स टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड व्हाट आर वी डूइंग। कस्टम एनिमेशन, कस्टम ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड शो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कस्टम एनिमेशन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 84, विच एप्लीकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस एक सूट है, पूरा मतलब कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसमें वर्ड आ रहता है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। मीडिया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर ये उसका पार्ट नहीं है। डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 85, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू एडिट अ चार्ट इन MS एक्सेल। सो राइट क्लिक करके चार्ट को हम ऐड कर सकते हैं। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 86, इफ वी लोड अ पिक्चर फ्रॉम फाइल इन MS पावर पॉइंट एंड चेंज पिक्चर स्टाइल व्हाट विल बी हैपेंड व्हेन सेव प्रेजेंटेशन। Original picture also modified. Original picture is removed because it is added in MS Word. Original picture is not modified. Picture in MS PowerPoint returns to original form. Option D, C option है, original picture is not modified, वो दुरुस्त है। Question number 87, if we want to add background image to all slides, what will be the correct option? Add background image to all slides individually. There is no such option. Add background image in slide master, use auto format option. So जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C, add background image in the slide master. Question number 88, which menu should be used if we want to add clip art, file, view, insert, help। जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं उसमें से कौन सा यूज़ करेंगे इनमें से जिसमें क्लिप आर्ट हम ऐड करें। तो इंसर्ट करने के लिए हमें
इंसर्ट करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है विच इज़ नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज फॉर MS वर्ड। 5%, 37%। इसमें जो वैलिड नहीं है वो कौन सा है? वो आपका डी है, 5%। क्वेश्चन नंबर 90 विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर्स टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन होम। जी हाँ, होम बटन है जो आपका कीबोर्ड में कर्सर लाइन में कहीं भी होगी तो आप होम को प्रेस करेंगे तो लाइन के स्टार्ट में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। लेफ़्ट एरो से करेंगे तो एक लेटर लेफ़्ट होगी, अप करेंगे तो अप जो ऊपर लाइन होगी उसमें चली जाएगी, पेज अप करेंगे तो पेज ऊपर हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे ना तो फिर आपके जो फर्स्ट लाइन होगी पैराग्राफ की, फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगी, वहाँ आकर आ जाएगी। कंट्रोल प्लस होम। क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। ये तो हो गया ना, नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट व्यू इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। प्रिंट, वेब, फाइनल, लेआउट, डी ड्राफ्ट। हो गया, हाँ। सो इसका जो फाइनल लेआउट है ये कोई भी व्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। चेंज टेक्स्ट, चेंज केस जो है ना, चेंज केस में आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, वो आप चेंज केस में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 विच शॉर्टकट की इज यूज टू यूज रिप्लेस फीचर। कंट्रोल F, कंट्रोल G, कंट्रोल H, कंट्रोल R। सो इसका जो करेक्ट आंसर है कंट्रोल H, हाइपरलिंक होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003। इसका जो 2003 का एक्सटेंशन था वो DOC, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और 2006 और 7 का जो और 10 के बाद 10 का है वो है DOX डॉट। क्वेश्चन नंबर 95 विच इज़ यूज टू असाइन अ स्पेसिफिक नेम टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट लोकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर 96 द ऑप्शन ऑफ फॉर फुल स्क्रीन रीडिंग इज अवेलेबल इन विच टैब ऑफ MS वर्ड। ये जो ऑप्शन है फुल स्क्रीन का वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, किस मेन्यू में? आपका व्यू टैब में वो अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 97 द रेड, ग्रीन एंड ब्लू squiggly lines indicates potential error in spelling and grammar. To turn the squiggly lines off, which of the following option is used? Spell check, proofreading, add word to dictionary and correct the sentence thesaurus. B ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वो के एक हार्डवेयर है। बी। क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट डज एंटर कमांड डू। प्रेस द कमांड, डज नॉट प्रोसेस द कमांड, प्रोसेस द कमांड, एंटर। ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है। 100 व्हाट डज डिलीट कमांड डू। डिलीट जो होता है वो डिलीट द कैरेक्टर्स, डज नॉट डिलीट। ए ऑप्शन डिलीट करता है, डिलीट्स द कैरेक्टर, डिलीट कमांड करता है। सब्सक्राइब टू रति एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, टिकटॉक एंड व्हाट्सएप। रति एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए और जॉब्स प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको किसी भी मज़ीद अपडेट्स की ज़रूरत है, किसी स्कॉलरशिप के बारे में, जॉब के बारे में या पास पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।